شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کی خدمت میں سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہنوکا کے تعلق سے ہے کہ ہنوکا وہ عید ہے جو بہادروں کی عید ہے، جو کہنوں کی عید ہے، جس پر خدا نے مہر ثبت کر دی اور یہ عید پکی ہو گئی، اور یہ عید 8 دن کی ہوتی ہے۔ یہ ہر سال تقریباً یہ کرسمس کے ٹائم پہ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ 8 دن کبھی اس سے پہلے ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح سے یہ ہوتی، کبھی 11ویں مہینے میں، کبھی 12ویں میں، لیکن زیادہ تر یہ 12ویں مہینے میں ہوتی ہے، کیونکہ انہی دنوں میں اس عید کا، جسے عید تجدید بھی کہا جاتا ہے، جسے صفائی کی عید بھی کہا جاتا ہے، جسے ہیکل کی طہارت کا بھی کہا جاتا ہے کہ اسے دھویا گیا، اسے صاف کیا گیا اور اس کی ریپیئر کی گئی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر سے رومیوں نے اسے توڑ دیا تھا، اس کو ناپاک کر دیا تھا۔ تو کہنوں کے گروپ نے اس کو خوب صاف کیا اور پھر یہ عید مقرر کر دی گئی، اور اس کے چراغ دوبارہ سے جلائے گئے اور ایک چراغ کی نئی شکل بنا دی گئی، کیونکہ جو پہلا چراغ تھا جو موسیٰ کے وقت سے استعمال کیا جاتا تھا اسے منورہ کہا جاتا، اس کی 7 شاخیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہنوکا کا یا خنوکا کا جو شمع دان ہے یا جو چراغ دان ہے، وہ 9 ہے اس کے، اور جو سینٹر والا اس کا ایک فلیم ہے اس کو شماش کہا جاتا ہے۔ شماش اور شماخ بھی اس طرح سے اس کی شباہت جو ہے یا اس کو جو اٹیچ کرتے ہیں وہ مسیح کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن باقی جب ہم ان کو اکاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 9 بن جاتے ہیں، یعنی کہ یہ 9 شاخہ شمعدان ہے۔ اب 9 شاخہ آپ جانتے ہی ہیں، روح کے 9 پھل ہیں، اور پھر اس کی ہسٹری میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ مرتبان میں تیل نہیں تھا تو انہوں نے ایک جلا دیا، جب تیل اور نکالا تو اور نکل آیا، جب اس طرح کرتے گئے تو 8 دن کے لیے اس میں سے تیل نکلتا گیا اور یہ جلاتے گئے، اور میں نے بتایا تھا کہ 8 دن لگتے تھے کہ وہ جو تیل تیار ہوتا تھا چراغوں کے لیے، اسے گاندھی کا تیل کہا جاتا تھا، وہ باقاعدہ طور پہ اس کو گوندا جاتا تھا، کولو پہ گوندا جاتا تھا، اس کے اندر مسالے ڈالے جاتے تھے، پہلے ان مسالوں کو تیل میں ڈپ کیا جاتا تھا، زیتون کے تیل میں، اور وہ جو زیتون کا تیل ہوتا تھا ان پودوں کو کوئی باہر کی چیز نہیں ڈالی جاتی تھی، اور وہ اب بھی ہیں زیتون کے پہاڑ پر۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے اسرائیل جانے کے لیے تو گتسمنی باغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ اب بھی درخت رکھے ہوئے ہیں جن کو کوئی بھی ایسی کیمیکل والی کھاد نہیں ڈالتے، اور اسے دوسری کھاد ڈالتے ہیں، پتوں کی کھاد ڈالتے ہیں، اور وہ اس بات کے خیال سے ہے کہ اس کا پیور تیل ہو جو ہم خداوند کے کام میں استعمال کریں، اس میں کچھ بھی دوسرا نہ ہو، کیونکہ خدا کو دوسری چیزیں پسند نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اوپری آگ جب جلائی گئی تو وہ کیا حال ہوا ایلی کین کے بچوں کا۔ جب اوپری آگ، کوئی بھی کام ہم اپنی عقل سے کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل عبادتوں میں بھی
पैसे दे दे के लोगों को और किराए पे लोगों को ले आते हैं ताकि गोरों को दिखाएं कि देखो हमें लोग कितना ज़्यादा सुनते हैं। और मैंने पहले अपनी एक मैसेज में मैंने बताया था कि जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे लोगों ने कहा कि जी कितने हजार लोग चाहिए आपको, कितनी कुर्सियां आप चाहते हैं कि उठाई जाएं मौजूदों की, कितनी औरतों को आप चाहते हैं कि गवाही दें कि जी मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया। कई कहेंगे कि जी हमारे वीज़े लग गए। मैंने कहा भाई मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरा खुदा जानता है, और मैं अगर कोई ऐसा पखंड करूं तो मुझे याद है कि एली कैन के बच्चों का क्या हाल हुआ था, उधर ही फुड़क फुड़क के मरे थे। तो इसलिए खुदा ऐसे पखंड पसंद नहीं करता। तो मैंने इस बात को देखा है ये हनुका की ईद पर भी कि उसके मततिया कहन के बेटों ने, यहूदा कहन ने, उसके भाइयों ने, उनके साथियों ने, उनके गुरुओं ने ऐसा ही किया कि जो कुछ उस मर्तबान से, जो हैकल का मर्तबान था, तेल वाला मर्तबान था, जो कुछ उसमें से थोड़ा बहुत निकलता था उसी को लेकर आते थे ताकि चिराग जलाए जाएं। ये नहीं किया था कि बाहर से गैलन ले आओ या मोहल्लेदारों से पूछ लो कि पता चले रूमियों को कि देखो हमारे चिराग जल रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। लेकिन रूहुल कुदस ने, उनके खुदा ने, जो हमारा भी खुदा है, उसने ऐसा कुछ मुहैया किया, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है, वो प्रोवाइडर है। उसने प्रोवाइड किया और 8 दिन तक वो चिराग जलते रहे। क्योंकि बात मैं कर रहा था कि हिंदू जो है वो दिवाली पे खूब दिए जलाते हैं, मुसलमान ईदों पे चिरागा करते हैं, यहूदी खूब लाइटिंग करते हैं, चिराग रोशन करते हैं। एक हम हैं जो गाते हैं कि हमने आसमान पे जाना है। एक हम है जो खुदा के ठेकेदार है। एक हम है जो यहूदियों को भी बुरा कहते हैं। एक हम है जो किसी को पल्ले नहीं बांधते। दरअसल बात यह है कि जितने लीडर हैं वो भगौड़े हैं स्कूल के, मोस्टली, हर एक नहीं, कुछ ज्यादातर हैं। ना तारीख जानते हैं, ना जोग्राफिया जानते हैं, ना सेमिनरी की है, ना किसी के शिगिर्द बने हैं। जो शिगिर्द है नहीं वो उस्ताद कैसे बन सकता है? और वो सुनाते हैं लोगों को, कभी किसी तरफ ले जाते हैं, कभी कोई कहानियां सुनाते हैं, और कई कहते हैं ये यहूदियों की बातें हैं, हमें नहीं माननी। तो यहूदियों की बातें नहीं माननी तो आप मानोगे किसको? ये तो बाइबल उन्हीं की है, ये तो उन्हीं के किस्से कहानियां हैं, ये तो उन्हीं के खुदा की बातें हैं। हम तो मोड़ों के लोग हैं, और मोड़ भी वो हैं जो उनके इलाके के नहीं। हम तो पता नहीं, जरा गौर करो तो इन लोगों को ये भी पता नहीं कि ये इनकी अपनी जात क्या है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये तो उन कबीलों के लोग हैं जिनको कोई बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाने देता था, जिसका असर आज तक इनकी जिंदगियों में नजर आता है। एहसासे कमतरी, चाय पी के तो कप जो है वो बेड के नीचे रख देते हैं। अगर कोई इनके साथ बात करे तो इनका जुमला सीधा नहीं होता, आड़ आड़ के बोलते हैं, क्योंकि एहसासे कमतरी है। क्यों? ये चिराग जलते हैं खून से। मकाबियों ने अपना खून दिया, यहूदियों ने, कहनों ने अपने आप की दलेरी दिखाई। इसी वजह से क्या हाल किया हिटलर ने, क्या हाल किया रूमियों ने यहूदियों का, क्या हाल कर रहे हैं अब भी। इसने क्या हाल किया नबूकदनेस्सर ने उनका, हिटलर ने क्या किया, स्पेन में क्या यहूदियों का हाल हुआ, रूमियों ने क्या यहूदियों का हाल किया, उन मकाबियों का जो मसाद के पहाड़ियों पर रहते थे उनका क्या हाल हुआ। मार दिए, तह तेक कर दिए, लेकिन आज भी वो कौम जिंदा है, आज भी वो कौम रोशन है, क्योंकि उनके खून से चिराग जले हैं और वो चिरागों की तरह जल रहे हैं। और हम, जिस किसी ने 2 पैसे दे दिए,
कभी तो कोई, अच्छा बहुत सारे लोग हैं वो नहीं 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 नहीं, ये क्रिसमस नहीं मनाना, ये हमारा नहीं है, ये फलां का है। भाई किसी का भी हो, नाम तो मसीह के नाम पे इबादत हो रही है ना। हमें जिस किसी को पता नहीं है वो कि ये पैगन ईद है जी, ये गैर अक़वाम की ईद है, भाई तुम खुद बखुद ही उनके मनाद बने हुए हो बगैर पैसों के। लोगों को पता ही नहीं कौन गैर अक़वाम पैगन्स हैं, किन का वो देवता था किन का नहीं। तुम इतनी मेहनत करते हो, रिसर्च करते हो, किताबों से ढूंढते हो, फिर दिखाते हो ये फलां था, ये रूमियों का था, ये यूनानियों का था, उसका ये नाम था। अपने बाप दादे के नाम का नहीं पता, उनकी खोज लगा लगा के फलां का बेटा था, फलां की बेटी थी, फलां ये वहां था, वहां से वहां आ गया और फिर ये वहां पे रखा और अब ये उनका देवता था। फिर उन्होंने कहा इस भाई ऐसे ही चलो, मान लेते हैं कि आप बड़े सुपर हैं, लेकिन हम तो उनकी इबादत नहीं कर रहे ना, हम तो मसीह की याद करते हैं। जब हम कहते हैं मैरी क्रिसमस, जिसका मतलब है मसीह की याद की खुशी, हम तो मसीह की इबादत करते हैं। मकाबी चिराग जला रहे हैं, तरले ले रहे हैं कि उनमें से थोड़ा सा भी तेल निकल आए तो हमारा चिराग जल जाए। और मसीह के लोग जो हैं, जो मसीह के नाम की इबादत कर रहे हैं, कोई झंडियां लगाते हैं, कोई लाइटें लगाते हैं, आप उनको टोंट कर कर के, तंग कर कर के, हकीर जान जान के, उनको शर्मिंदा कर कर के उनके चिराग बंद कर रहे हो। इस पर जरा गौर करो। कहीं आप अपने आप को ज्यादा रास्तबाज समझते समझते नाश तो नहीं कर रहे अपना आप भी और कौम का भी? क्योंकि ये तो त्यौहार जो है ये यहोवा खुदा का तो नहीं, ये तो एवा खुदा का नहीं, ये रब्बुल अफवाज ने नहीं दिया, ये एलोहीम का नहीं, ये एल शदाई का नहीं, ये अदोनाई का नहीं, ये यहोवा सिद्दीकौन का नहीं, ये यहोवा रा का नहीं। आप किस खुदा की बात कर रहे हैं? ये तो मकाबियों ने शुरू किया था, ये मकाबियों ने चिराग जलाया। तो क्यों सारे यहूदी पूरी दुनिया में मना रहे हैं? क्या वो सारे के सारे आप लोगों से गए गुजरे हैं? तुम जो स्कूल से भागे हुए हो, इस बात पर जरा सोचो कि कितना नुकसान कर रहे हो अपनी औलाद का, अपनी नस्ल का, अपनी कौम का। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो अब चिराग आप बुझा रहे हो, कौन जलाएगा? आपकी फैमिली में कौन बत्तियां जलाएगा? यस्सु के नाम की, चलो मकाबियों ने हैकल की तजदीद की, हैकल की सफाई की, क्योंकि वहां पर गैर अक़वाम ने कुर्बानियां चढ़ाई। तो फिर उनको चाहिए था कि अच्छा जी अब तो गैर अक़वाम ने चढ़ाई तो अब हमें चढ़ानी ही नहीं चाहिए, हमें कुर्बानियां करनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जो उन्होंने किया सो किया, हमने धो दिया, खत्म हो गया, अब हम अपने खुदा के चिराग जलाएंगे। चलो जो अगर गैर अक़वाम के ही ये दिन था, उन्होंने किया, उन्होंने मखसूस किया ये 25 दिसंबर, उन्होंने कहा कि ये मसीह की ईद की बात है, तो चलो हम उनको नहीं मानते, हम वलादत मसीह नहीं मानते, क्योंकि मसीह की वलादत तो 20 मार्च को हुई, बुध के दिन, वो तो तीसरे महीने की है, क्योंकि डेट उस तरह से बनती है। लेकिन अगर हम तो क्रिसमस जो है वो तो मसीह की वलादत का दिन है ही नहीं, ना वलादत का दिन मनाते हैं। हम तो मसीह की याद में करते हैं कि वो पैदा हुआ, वो हमारे लिए आया, हम इस दुनिया में आया। अच्छा, ये तो काफी मैंने इस पर टाइम लगा दिया, लेकिन ईद पुरीम वो किसने बनाई? वो भी यहूदियों ने खुद बनाई। कुर्रे की ईद
कुर्रा डाला और कुर्रा निकल आया हमान के नाम पे, मर्तकी के नाम पे नहीं निकला। तो यहूदियों ने ईद मुकर्रर कर ली और ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। हनुका पे वो रोजे रखते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, सारी रात जागते हैं, तलीद लेते हैं, दुआ वाली चादर ऊपर लेते हैं, सारी रात जैसे हिंदू जगराता करते हैं, सिख जगराता करते हैं, मुसलमान एक रात शब रात जो होती है, एक खास उनकी रात है, उस रात वो सारी रात तराबियां पढ़ते हैं। शिये भी करते हैं, सुन्नी भी करते हैं, तमाम करते हैं एक रात। और एक रात ये भी कर रहे हैं यहूदी भी, एक रात हिंदू सिख भी कर रहे हैं। अब ये जो मैं क्या कहूं, अक्सर आप कह देते हैं कि जी आप गुस्से में आ जाते हैं। बस गुस्से में ना आऊं तो क्या कहूं कि आप क्या वो पंजाबी में ना 9 चो ना 13 चो तालियां मार के आसमान पे जाने के लिए आप तैयार हैं। 2 रुपये चंदा डाल के आसमान पे ट्राली पे बैठ जाएंगे, आसमान पे चले जाएंगे। ढोलकियां कुट कुट के समझोगे असे आसमान पे चले जाना। कौन सी रात तुमने मुकर्रर किया कि हम बैठेंगे और दुआ करेंगे? कोई दुआ का कोई रात है, कोई दिन है दुआ का? जिस दिन दुआ करने जाते हैं दिन के टाइम, उस दिन कपड़े देखने के लिए जाते हैं, आंडियां गवांडियां नू देखना चाहते हो, दिल पिशौरी करते हो। यसाया की किताब में लिखा है, कौन सा दिन तुमने मेरे लिए मुकर्रर किया है? किस दिन तुम मेरे लिए रोजा रखते हो? किस दिन तुम मेरे सामने खाकसार होते हो? किस दिन उस बात को आप देखो ना, यसाया 58 बाब, उसको खुदा का गिला है। आप इतनी लाडली कौम हो कि क्रिसमस की छुट्टियों पे भी इतराज, छुट्टियां दे दो इनको, भले पूरे साल की दे दो, और नहीं क्रिसमस नहीं मनाना, लाइटिंग नहीं करनी, ये गैर अक़वाम का है। तुम खुद ही गैर अक़वाम के प्रीचर बने हुए हो। क्यों नहीं ये मकाबियों की बात क्यों नहीं करते? क्यों ईद पुरीम की बात क्यों नहीं करते कि खुदा ने वो वहां पर भी रूहुल कुद्दस का काम है, जिसने वो कुर्रा हमान के नाम का दिया। और यहां पर भी रूहुल कुद्दस की बात है, जिसने मर्तबान में 1 दिन के तेल को 8 दिन का कर दिया। अपनी अपनी जिंदगी में देखो जो खालीपन है, अगर रूहुल कुद्दस के सामने घुटने टेक लोगे, कोई ना कोई इरादा कर लोगे, दिल में कोई ठान लोगे, तो वो कभी आपकी जिंदगी से खुशी की रोशनी कम नहीं होने देगा। इकरार तो करो, माफी तो मांगो, कोई रात तो जागो, कोई घुटने तो टेको, कोई दुआ वाली चादर तो ऊपर ले लो, एक दूसरे का हाथ तो पकड़ो, बीवी को माफ करो, बच्चों को माफ कर दो, बच्चे आपको माफ करें, भाइयों को माफ करो, बहनों को माफ करो, आस पड़ोस को माफ करो, कोई किसी को तोहफा दो। एक नई बिदत शुरू होगी, ना वो आप कभी उतरा हुआ स्वेटर नहीं किसी को दिया, तो वो सेंटा क्लास अगर किसी को गिफ्ट देता है, किसी को कपड़े देता है, किसी को जूती देता है, तो उस पर भी फतवा दे दिया, ये भी गैर अक़वाम का है। ओ भाई तू अपनी कौम वाला है तो तू क्या कर रहा है? तू तो वो गैर अक़वाम तो इतना कर ही रहे हैं, वो भी बुराई था, सेंटा क्लास भी, यहूदी भी बुरे हैं, मुसलमान भी बुरे हैं, हिंदू भी बुरे हैं, सिख भी बुरे हैं। आप जो बहुत अच्छे हो, आप अपनी करतूत तो दिखाओ। यकूब क्या कहता है? मैं तुझे ईमान के साथ अमाल दिखाऊंगा। तुम क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाते हो? सिर्फ जो मिला पादरी को दे दिया और पादरी ने फैशनों पे लगा दिया। ऐसी छतरौल होगी कि तुम लोग जानते रहोगे कि खुदा ने उल्टा ना टांग दिया तुम्हें, तो फिर देखोगे कि हमारा हाल क्या है। तुम्हारे चिराग पहले भी बुझे हुए हैं, और जो थोड़ी बहुत रोशनी है त्योहारों की, वो भी खत्म हो रही है। खुदा तुम्हें अकल दे और इन बातों से बाज आओ और खुदा की ताबेदारी में आ जाओ।
تو یقیناً برکت پاؤ گے، کیونکہ